Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you to our channel Psyche Simplified. Welcome to the series of NCRT where we are trying to understand the concept of psychology in a very simple or in a very layman term. We already have done with three chapters so far. What is psychology? Methods of inquiry, that is research method. And the third one is development of human behavior, human development. So you can see those recording in our YouTube playlist. Today we are going to start with the next topic, that is sensory, attentional and perceptual process. So this is our topic. Three process we need to understand: sensation, attention and perception. The same topic, the same chapter you will find in paper 1 also, sensation, attention, perception. Very important chapter, very lengthy chapter also. Okay, so before moving forward, first of all, these are the things which we are going to cover in this particular lecture of sensation, attention, and perception. That is how we are going to understand the world. What are the varieties of stimuli? What are sensory modalities? Attention process क्या होती है? What is the perceptual process? Perceiver. Different laws are there. Different laws of perception are there. Perceptual organization is there. Perceptual constancy is there. Illusion is there. Socio culture influence on perception is there. These are the things which you are going to see. In a nutshell, from UPSC perspective, I will tell you that there are three processes over here. The first one is sensation, attention, and perception. Okay, the lengthy one is perception. Under perception, different kind of perception is there. Perceptual organization is there. Perceptual constancy is there. Okay, perceptual illusions are there. Okay, perceptual difference is there. Subliminal perception is there. So these are different kind of perception which you need to see over here in perception. In attention, total three theories are there: Broadband theory, attenuation model, Treisman, and later filter theory. Under sensation, important one is signal detection theory and the concept related to absolute threshold or differential threshold. Okay, so these are the things which we are going to cover. Okay, now before moving forward, a very important, a very beautiful quote given over here before every chapter. This is a very good thing about NCRT. The quality of life is determined by its activities. Okay, and now this quote is given by a very famous philosopher, Aristotle. Now you know that these Greek philosophers, Aristotle, Plato, these philosophers also have a lot of influence on psychology. Okay, you know that psychology was actually the branch of philosophy. So these philosophers talks a lot of things which actually influence psychology nowadays. The quality of life is determined by its activities. What does it mean? It means that हमारी जिंदगी कैसी होगी, हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कर क्या रहे हैं. तो एक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना. सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी. अगर आप ख्याली पुलाव बनाएंगे कि भाई ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा करें, वैसा करें, उससे बात नहीं बनेगी. योर लाइफ इज बिल्ट बाय व्हाट यू कैन डू एवरी डे. ठीक है, आपने प्लान तो कर लिया कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है, लेकिन प्लान करने के बाद आपने क्या उस प्लान को कन्वर्ट किया अपने एक्शन के अंदर, तभी बात बनेगी. ओके, सो अगर आप उसको अपने कॉग्निशन में रखते हो तो उसी को हमें देखना है. कॉग्निशन यानी कि अपने थिंकिंग के अंदर रखते हो, देन इट इज नॉट फ्रूटफुल. द थिंग्स बिकम फ्रूटफुल व्हेन यू कन्वर्ट देम इनटू योर एक्शन. ठीक है, तभी क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने आज प्लान किया, कल किया, डेली किया, रेगुलर बेसिस पे किया, तो आपकी एक डेली हैबिट फॉर्म होगी. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अखबार पढ़ना हो गया. ओके, तो एक्शन ओवर थॉट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको माइंड क्या होगा, एक्टिव माइंड बनेगा कि आप एक्टिवली उसको कर रहे हैं, सिर्फ आप सोच रहे हैं उसके बारे में. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस कोट गिवन बाय एरिस्टोटल. यू कैन यूज दिस इन योर एथिक्स पेपर, एसे पेपर और इन साइकोलॉजी आल्सो. Moving forward, next we will see the first topic. You will see over here the screenshot of the NCRT is also given. दुनिया को हम समझते कैसे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी रियलिटी होती है ना हमारे पास में, मतलब जो भी देखते हैं, हम आसपास जो भी देखते हैं ना, इट इज नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन रियलिटी. ठीक है, हम हमेशा सच्चाई नहीं देखते, है ना. जैसे मान लीजिए हम अगर कोई आपको सच्चाई भी दे, अगर आपको कोई सच बात बताए, एग्जैक्टली आपको कोई फैक्ट बताए, तो बहुत सारे लोग उस बात को विश्वास नहीं करेंगे. नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनकी सच्चाई अलग है. ऐसा हम क्या बोलते हैं, उनका परसेप्शन अलग है, उनका इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है. वो उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. जैसे आप देखिए इंडिया के अंदर काफी सारे एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स होती है ना. आप देखोगे पेट्रियार्की सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो काफी जगह पे आप देखोगे अभी भी और पहले भी होता था कि विमेन आर नॉट अलाउड टू डू जॉब और टू डू स्टडीज. ठीक है, उनको क्या बोला जाता था कि आप घर के काम कीजिए, है ना. तो ये परसेप्शन है, ये इस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट कर रखा है इस पर्टिकुलर चीज को. लेकिन अगर कोई इनको रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ऐसा नहीं है ना. दे कैन गो आउटसाइड,
है ना, पढ़ाई कर सकती हैं, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज। आप देखोगे हर एक एग्जाम के अंदर आपको लड़के टॉप पे मिलेंगी, ठीक है। आप उनको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी तो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये परसेप्शन बना हुआ है। ओके, रियलिटी कुछ और लेकिन परसेप्शन ऐसा बन गया। तो हम जो भी देखते हैं अपने आसपास, रियलिटी कुछ भी नहीं होता, ये होता है परसेप्शन, कि हम उस रियलिटी को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। एक ही सिचुएशन है, मान लीजिए एक क्लास एक रूम के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इज गिवन टू बोथ ऑफ देम। अब सिचुएशन सेम है, यानी कि सच्चाई तो सेम ही है, एक जैसी है, लेकिन उस सच्चाई को समझने का तरीका एक का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। तो इस तरीके से हम दुनिया को सीखते हैं, परसेप्शन करके हम दुनिया को सीखते हैं। परसेप्शन अब क्या हो गया, परसेप्शन के अंदर आपका ब्रेन इंटरप्रेट होता है, परसेप्शन के अंदर आपकी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अभी एकदम से आप परसीव नहीं कर लोगे, परसेप्शन से ऊपर होता है अटेंशन, उससे ऊपर होता है सेंसेशन। तो इस तरीके से सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये हमारी तीन इवेंट बनती है। ओके, जैसे हम बात करें सेंसेशन की, तो सेंसेशन यानी कि आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन को लिया। आप एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं, आपने देखा कि भाई यहाँ पर टीवी भी है, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी है, चेयर भी है, किसी की आवाज भी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है कुछ खाना बनने की। तो ये क्या हो गया, आपके सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट हैं, जो आपको एक रॉ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप क्लास में जाते हैं, आपको कहीं से आवाज भी आती है, आपको खाने की खुशबू भी आती है, आपको चेयर भी दिखती है, लोग भी दिखते हैं, लेकिन आपका काम क्या है क्लास में जाके जाने का, कि आपका काम है कि आपको पढ़ना है, लेक्चर पे आपको फोकस करना है, ये आपका काम है। तो आप क्या करेंगे, बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे। यू विल फोकस योर अटेंशन ओनली अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। ओके, तो हमारी दुनिया जो होती है, अवर वर्ल्ड, यू विल सी अवर वर्ल्ड इज कंप्लीटली फुल बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द पीपल, ठीक है, इन सबसे फुल है हमारा, है ना। लेकिन हम जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगी, हम उसको अपने कॉग्निशन का लेंगे, उसको परसीव करेंगे और उससे एक मीनिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन काम करता है। इसको आप समझेंगे, ये पूरी प्रोसेस टुगेदर इज अ परसेप्शन प्रोसेस, टुगेदर ये कॉग्निशन की बात करेगा। कॉग्निशन यानी कि मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, शुरुआत में नहीं होती। सेंसेशन के अंदर सिर्फ आपके सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेंसेशन आप कह सकते हैं एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर आपके सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, आपकी आईज, ईयर, नोज, स्किन, है ना, दो तरीके के और होते हैं, देखेंगे उनको। तो ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन परसेप्शन की बात करेंगे तो परसेप्शन में आपका इंटरप्रिटेशन भी होगा, ठीक है, आप उस चीज को समझोगे। मान लीजिए आप एक क्लास के अंदर लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो मैंने कुछ बोला, ठीक है, तो आप सेंसरी ऑर्गन्स आपके एक्टिवेट हैं, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को ले लिया, अटेंशन पे किया। लेकिन घर पे जाके सोचोगे, है ना, पुरानी कोई नॉलेज से उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, ओके, एक नया एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करोगे, तो ये क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। इसमें आपकी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, इसमें आपकी लर्निंग, मेमोरी, ये सब चीजें जो होती है इन्वॉल्व होती है। इस तरीके से हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आप दुनिया को समझ रहे हैं, तो ये प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट कहां से हो रही है, सेंसेशन से हो रही है। तो सेंसेशन से ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रही है। अब देखिए, हमारे पास कुछ होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो सेंसरी ऑर्गन्स बेसिकली आप देखोगे 5 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, अवर एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई जो होता है ना, स्टिमुलाई क्या करता है, स्टिमुलाई जो भी हमारे स्टिमुलाई यानी कि कुछ भी एनवायरनमेंट में जो मौजूद है, कोई भी एनर्जी, कुछ भी आप देखेंगे, एनीथिंग प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब ये जो स्टिमुलाई है ना, ये स्टिमुलाई आपको एक रॉ इन्फॉर्मेशन देता है। ये रॉ इन्फॉर्मेशन आप कैसे लेते हो, मान लीजिए स्टिमुलाई एनीथिंग प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये रॉ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो ये रॉ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इस रॉ इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट किया किसने, अटेंशन ने, ठीक है, अटेंशन ने फिल्टर आउट किया, आपके ब्रेन में चली गई, फिर ब्रेन ने क्या किया, परसीव किया कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं, ये तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे मेरे गांव में हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस हमारी काम करती है। ओके, तो एनीथिंग प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, एनी एनर्जी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। From stimuli, you are getting raw information with the help of the process of sensation, which is then filtered out by the process of attention, which is then interpreted by the process of perception. ठीक है, तो अगर हम बेसिक प्रोसेस बात करें सेंसेशन की, तो हमारे पास ये हमारे हो गए सेंसरी ऑर्गन्स। इसके अलावा देखिए, दो तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स आपको और देखने को मिलेंगे, एक होते हैं आपके काइनेस्थेटिक सेंस, एक होते हैं आपके वेस्टिबुलर सेंस, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ये इंटरनल सेंसेस होते हैं हमारे, ओके, ये तो आपको दिख गए, ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा है, ये आपके होते हैं इंटरनल सेंसेस। जो काइनेस्थेटिक सेंस होता है ना, ये क्या करेगा, ये काम करता है आपकी बॉडी के मूवमेंट को संभालने के लिए,
ठीक है, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपकी बॉडी की पोजीशन, है ना, मसल मूवमेंट जो होता है आपकी बॉडी का, तो ये सब काम कौन करेगा? आपका काइनेस्थेटिक सेंस करेगा। ओके, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये काइनेस्थेटिक सेंस जो होता है ये आपके क्या करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजता है। ठीक है, आपके सेरिबेलम को सिग्नल भेजेगा ब्रेन में कि किस तरीके से अपनी मूवमेंट सही तरीके से बना के चलनी है। दूसरा होता है आपका वेस्टिबुलर सेंस, ये आपके इनर ईयर में होता है। ये आपके हेड का मूवमेंट, ठीक है, आपको हेड को रोटेट करना है, इस तरीके के मूवमेंट को संभालने की कोशिश करता है। बैलेंस एंड बॉडी ओरिएंटेशन, ओके, एंड दिस इज फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ओके, जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं आपके अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया इंटरनल डीप सेंस। बेसिकली ये 5 देखे जाते हैं। तो काइनेस्थेटिक, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और वेस्टिबुलर्स मेनली रिलेटेड टू बॉडी ओरिएंटेशन। ठीक है, हेड को स्पिन कैसे करना है, टर्निंग हेड कैसे करना है, स्पिनिंग कैसे करना है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपके 7 सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली हो गई वैरायटी ऑफ स्टिमुलस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारी सेंसेशन होती है, सेंसेशन में आप क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स के हेल्प से आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने हियरिंग का इस्तेमाल करके साउंड को समझा, आपने स्मेल का इस्तेमाल करके ऑर्डर को समझा, टेस्ट का इस्तेमाल करके आपने देखा कि कौन कौन से केमिकल्स उसके अंदर है नहीं, टच से आपको समझ में आया कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। ओके, है ना, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स इस तरीके से हमारी सेंस मोडेलिटीज काम करती हैं। हर एक सेंसरी ऑर्गन का कुछ ना कुछ मोडेलिटी यानी कि कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो ईच ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, हर एक का कोई ना कोई काम होगा, वो काम वो करते जाओगे। अब देखिए ये क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ब्रांच भी होती है साइकोलॉजी की, इसको बोला जाता है साइकोफिजिक्स। अब देखिए साइकोलॉजी एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड होती है। साइकोलॉजी इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। अब हुआ क्या जाने लगा, धीरे धीरे ये समझने की कोशिश की जाने लगी कि अगर हम किसी चीज को, कोई भी चीज को फील करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई लाइट है या कोई आवाज है या कोई टेम्परेचर है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ये सब कितनी होनी चाहिए, है ना, कितनी मात्रा में मिलना चाहिए। तो जब इंटेंसिटी और इस तरीके की बातें करेंगे तो हमें कुछ फिजिक्स के लॉज भी उसके अंदर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से साइकोलॉजी और फिजिक्स आपस में मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं अपन साइकोफिजिक्स। ठीक है, तो साइकोफिजिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अब इसके अंदर हमारे पास 2 कंसेप्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एक होता है आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड को हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ सेंसेशन। जैसे मान लीजिए एक जग पानी है, एक जग पानी के अंदर आपने एक चीनी शोकर डाली, कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, है ना, एक जग से ज्यादा मान लो, चलो 2 चीनी शुगर डाली, कोई इंपैक्ट नहीं आया, 3 डाली, कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, 4 चीनी शुगर आपने डाली उसके अंदर, तो आपको इंपैक्ट दिख गया। मतलब 4 डालने पर आपको समझ में आ गया कि अब ये पानी पहले ऐसा नहीं है, इस पानी के अंदर डिफरेंस आ गया है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जब आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ मेरे को नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपने कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ पौधे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, आप और पास में गए, नहीं दिख रहे, और पास में गए, नहीं दिख रहे, फिर थोड़ा एक डिस्टेंस पे गए, वहां पे आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे अब पेड़ दिख रहा है, तो इसका मतलब वो आपका क्या हो गया, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका 80। दूसरा होता है कोई डिफरेंस थ्रेशोल्ड, ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिफरेंस थ्रेशोल्ड और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए 4 चम्मच शुगर पे समझ में नहीं आया कि पानी मीठा हो चुका है, 5 में समझ में आ गया, तो 4 और 5 का जो डिफरेंस होगा उसको अपन बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, मिनिमम चेंज, कितना मिनिमम चेंज रिक्वायर्ड था जिसकी वजह से आपको वो डिफरेंस समझ में आया, इसको बोला जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग इंटेंसिटीज को समझने के लिए, है ना, सिग्नल्स को समझने के लिए। मान लीजिए कोई वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट है, तो वेदर फोरकास्ट में कब एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको सिग्नल आ जाए कि वेदर चेंज होने वाला है, और मिनिमम कितना था ताकि आप फर्दर आगे रिपोर्ट बना सको, तो इसलिए दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हमारे एटी और डीटी के कंसेप्ट होते हैं। इसी रिलेटेड देखिए 2 लॉज हम देखेंगे हमारी फर्दर क्लासेस के अंदर। इसके अंदर आपको वेबर लॉ और फ्रेशनल लॉ ये भी देखना होता है, जो इसी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट अपन आएंगे, इसी में आप देखिए नेक्स्ट आपको कुछ अटेंशन के कंसेप्ट मिलेंगे। अटेंशन मैंने आपको बताया कि जो रॉ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसको फर्दर क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। तो अटेंशन में आप क्या कर रहे हैं, आप फोकस अपना करा रहे हैं, मल्टीपल स्टिमुलाई है आपके पास में, लेकिन आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन, फोकस्ड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होंगे, ये बहुत बहुत आसान है इसको समझना। ठीक है, जैसे आपने सिलेक्टिव, सस्टेन यानी कि लंबे समय तक अटेंशन पे करना, डिवाइडेड यानी कि मल्टीटास्किंग काम करना,
ओके, इसके अलग अलग शब्दों में भी आपको देखने को मिलेगा। कभी अलर्टनेस बोल देते हैं। अलर्टनेस का मतलब हो गया कि भाई रेडीनेस, कितना तैयार हैं आप। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक ही स्टिमुलस पर लंबे समय तक काम करना। सर्च यानी कि सर्च करना, फाइंडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कुछ देखना। हमारी जो अटेंशन होती है वो सिलेक्टिव होगी, लिमिटेड होगी। हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही अपने माइंड के अंदर ले सकते हैं, अपने कॉग्निशन के अंदर ले सकते हैं। आप देखोगे आज के टाइम पर मेमोरी मेमोरी कम होती जा रही है लोगों की। वाई? क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलाई है एनवायरनमेंट के अंदर। वी आर एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया 24/7। उसकी वजह से इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है। कितनी रखोगे? कैपेसिटी तो उतनी ही है ना कहीं तो खो जाएगी, या उसको रखोगे या किसी और को रख पाओगे। कितना मल्टीटास्किंग करोगे, है ना? ह्यूमन ब्रेन तभी इतना इवॉल्व भी नहीं हो पाया ना इतनी फास्ट तरीके से कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे जो हमारे अटेंशन को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो यानी कि कोई भी आप चीज जिसको सुन रहे हैं, उसका साइज क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मोशन क्या है, नया है या पुराना है। नए में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पुराना है तो चलो ठीक है, आ जाएगा समझ में। ओके, आपके अंदर मोटिवेशन है या नहीं अटेंशन पे करने का, आपको इंटरेस्ट है या नहीं, एटीट्यूड, कितना तैयार आप हैं। तो ये फैक्टर्स जो होंगे वो इम्पैक्ट डालेंगे कि आप किसी चीज को कितना अटेंटिव तरीके से ले पाते हैं। ठीक है, इसी में देखिए हमारे पास कुछ थ्योरीज भी देखने को मिलेंगी जो हम फर्दर क्लास में और देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि ये थ्योरी कौन कौन सी होती है। तीन आपको मेजर थ्योरी देखने को मिलेंगी। पहला होता है फिल्टर थ्योरी, दूसरा होता है एटेन्यूएशन मॉडल, और तीसरा होता है मल्टी मोडाल थ्योरी, और डच एंड डच मॉडल ही बोलते हैं इसको। फिल्टर थ्योरी क्या बोलता है कि भाई हम सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है ना, हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर जाकर हमारा कॉग्निशन यानी कि परसेप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, आप पहले इसको देखकर, इसके फिजिकल फीचर्स को देखकर सोचेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सोचा चार में से दो इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको रख लिया। फिर आपने अपने अपनी मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल किया, परसेप्शन का इस्तेमाल किया। ये होती है आपकी फिल्टर थ्योरी, अर्ली सिलेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? ये स्ट्रिक्ट फिल्टर है कि भाई आपके में फिल्टर रखा हुआ है, फिल्टर काम कर देगा सारा का सारा। इसके अलावा जो मल्टी मोड थ्योरी होती है और एक लेटर फिल्टर थ्योरी भी होती है, वो क्या बोलती है कि भाई ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। तो ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में फिल्टर कर दिया, बाद में भी आप फिल्टर कर सकते हो, अर्ली भी कर सकते हो और लेटर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने पहले समझा चीज को कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपने फिल्टर किया। चार इंफॉर्मेशन है, पहले आपने चारों को समझा, कॉग्निशन का इस्तेमाल किया, मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल किया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बेसिस पे आपने फिल्टर किया। ये कौन बोलता है? मल्टी मोड मॉडल। और ये क्या बोलते हैं कि भाई पहले समझा नहीं, समझने वाला काम तो बाद में आएगा। पहले आपने सिर्फ फिजिकल फीचर्स को देखते हुए, फिजिकल फीचर्स यानी कि साइज, इंटेंसिटी, मोशन, इसको देखते हुए आपने बता दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों के बीच का होता है एट्यूनेशन थ्योरी। इसको ट्रीजमैन ने दिया था। ये क्या बोलते हैं कि भाई फिल्टर विल्टर होते नहीं है, हमारे अंदर क्या है? एट्यूनेशन है। जैसे मान लीजिए मल्टीपल साउंड आ रहे हैं आपके आपके आसपास, ठीक है, बहुत सारे साउंड हैं आपके आसपास। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्लास पे ध्यान देना। तो आपने बाकी सबकी आवाज कम कर दी है, जैसे हम टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं। तो इन द सेम वे जो अदर आवाजें हैं आपने उसका वॉल्यूम कम कर दिया है। आपका ध्यान अभी उसके ऊपर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास के अंदर चल रहा है। मान लीजिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट होगी तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा, क्लास पढ़ाने वाला जो वॉल्यूम है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, एटेन्यूएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एट्यूएशन थ्योरी। और ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी करता है वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, उसको हम बोलते हैं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी तीन थ्योरी काम करती हैं। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिक्ट फिल्टर, वीक फिल्टर और आपका फ्लेक्सिबल फिल्टर। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें देखिए कुछ अटेंशन के टाइप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। डिवाइडेड और सस्टेन अटेंशन, तो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से समझना। डिवाइडेड अटेंशन तो क्या हो गया कि भाई आप अपनी डिवाइड कर पा रहे हो अटेंशन को, मल्टीपल टास्क आप कर पा रहे हो। ओके, सस्टेन अटेंशन यानी कि एक ही काम पर लंबे समय तक फोकस करना, इसी को बोला जाता है विजिलियंस। ठीक है, विजिलियंस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकवर्थ का मॉडल भी आता है। एबिलिटी फोकस लॉन्ग ड्यूरेशन। अब देखिए इन सब की बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ, ऐसे सोल्जर्स आर्मी में चाहिए होते थे जिनके अंदर डिवाइडेड अटेंशन हो, जिनके अंदर सस्टेन्ड अटेंशन हो। तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना लोगों को। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, रडार मॉनिटर करना है लंबे समय तक, तो लोगों की कैपेसिटी को इतना बनाना पड़ेगा जहां पर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस कर सके। ठीक है, ओके, तो अटेंशन इज नॉट इक्वल मेन टास्क गेट्स मोर इफेक्ट। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अटेंशन एबिलिटी टू अटेंड टू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। लेकिन इसमें भी क्या होता है, देखिए ये बहुत तरीके से काम करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं,
आप कर रहे हैं ड्राइविंग, ड्राइविंग करते करते वक्त आप हेडफोन लगा लो, गाने सुन लो, फोन पे बात कर लो, दिक्कत इतनी नहीं आएगी। वैसे फोन पर नहीं करनी चाहिए बात, लेकिन अगर आप हेडफोन लगा के कर रहे हैं तो यू विल नॉट फेस सो मच प्रॉब्लम, क्योंकि इस केस में क्या है कि आपकी अटेंशन मेजरली सिर्फ एक चीज पे फोकस है। दूसरा वाला भी आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मेजर से फोकस नहीं है आपका। मेन टास्क इज गेटिंग मोर इफेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर आप दोनों काम ऐसे बना दोगे ना, जहां पर दोनों टास्क को ज्यादा एफर्ट लगेंगे, तो देखना हमेशा दिक्कतें आ जाएंगी। मान लो ड्राइविंग करते करते ही कोई और हम एक टास्क और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ड्राइविंग करते करते ही आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, अटेंशन हट जाएगी। हो सकता है कुछ केस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ओके, तो हमेशा जब आप डिवाइडेड अटेंशन करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो मतलब एक या दो काम ऐसे हो जिसपे फोकस हो बिल्कुल, एक या दो काम लाइट काम हो, ज्यादा ध्यान वहां पे ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये हमारी होती है डिवाइडेड अटेंशन, ये आपकी होती है विजिलियंस, इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। ओके, डेफिनेटली ये डिपेंड करेगी कि स्टिमुलाई कितना क्लियर है, मतलब आवाज कितनी सही आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। ओके, है ना, लोकेशन कैसी है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा सस्टेन्ड अटेंशन निर्भर करता है। ठीक है, दीज आर द अटेंशन टाइप्स। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो इसके बेसिस पर देखिए हमने एक पूरी की पूरी परसेप्चुअल प्रोसेस समझने की कोशिश की। आपको मैंने सेंसेशन बताया, आपको मैंने अटेंशन बताया। सेंसेशन में एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंस थ्रेशोल्ड, अटेंशन में अलग अलग टाइप, ये हो गया। अब फाइनली जो प्रोसेस हमारी निकल के आएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, परसेप्शन। मतलब अब हम क्या बनाएंगे, उसका एक मीनिंग बनाएंगे। तो परसेप्शन का मतलब हो गया जब आप उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं यानी कि उसको मीनिंग दे रहे हैं। तो दुनिया को समझने के लिए, अगर दुनिया को समझना है कि दुनिया कैसी है, तो उसके लिए परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी में चीजों को नहीं लेते, सब्जेक्टिव में लेते हैं हम। मेरा परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन अलग है, मेरी सच्चाई अलग है ना, मेरी रियलिटी अलग है। ओके, तो परसेप्शन इज नॉट जस्ट सीइंग, इट इज इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी, कि आप रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, तो रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है, जिसको आप बनाते हैं आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी मेमोरी क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, उसकी बेसिस पे आप बनाओगे। इसी में देखिए दो तरीके की प्रोसेस और होती हैं। परसेप्शन की जो थ्योरी होती है, एक होती है बॉटम अप, एक होती है टॉप डाउन। ओके, बॉटम अप थ्योरी जो दी गई थी गिब्सन के द्वारा, वो कहते हैं कि जो परसेप्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कितनी है। मतलब सेंसेशन इक्वल्स टू परसेप्शन। बॉटम अप थ्योरी बोलती है कि भाई मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुरुआत की थ्योरी होती है, इसको हम इकोलॉजिकल मॉडल ही बोलते हैं। कि आप सेंसेशंस, मतलब आपने ये जो है बॉटम अप देख रहे हैं ना, बॉटम अप कि पहले सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करो, फिर अप इधर जाओगे। टॉप डाउन यानी कि क्या बोलेगा कि पहले ब्रेन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, टॉप डाउन है ना, फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी। तो प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके हिसाब से, मेमोरी एक्सपेक्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके हिसाब से ये सब चीजें होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। बाद में जाकर दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी चीज को अच्छी तरीके से समझना है तो। ये मॉडल दिया था हमें गिब्सन ने, और ये दिया था गेरटी ने। डेफिनेटली इसके काफी सारे एविडेंसेस और काफी सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इन अवर फर्दर क्लास। ठीक है, तो अगर हमने समझा कि सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये तीन चीजें हो गई। इन तीनों चीजें की बेसिस पर एक इंसान क्या करेगा, परसीवर कहलाएगा। मैं परसीवर हूं, ठीक है, मैं परसीवर हूं क्यों, क्योंकि मैंने ये सब चीजों को समझा, परसेप्शन किया मैंने, स्टिमुलस, फिर फाइनली मैंने परसीव किया। और जो मेरा परसेप्शन होगा, परसेप्शन एक क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस। अब जैसे मैं चीजों को परसीव करूंगा, वो डिपेंड करेगा मेरे मोटिवेशन के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर, मेरी कॉग्निटिव स्टाइल के ऊपर। ये सब क्या होती हैं, दीज आर ऑल मेंटल प्रोसेस। इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कंस्ट्रक्ट कैसे करता हूं किसी भी रियलिटी को। जैसे मेरी नीड क्या है, मेरी डिजायर क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है। मान लीजिए कोई भूखा इंसान है और कहीं पर कुछ खाने को रखा हुआ है, तो उसको वो चीज ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वो भूखा है ना, उसकी नीड है, उसका मोटिवेशन है, तो उसको परसीव ज्यादा करेगा। कोई इंसान नहीं है भूखा, तो हो सकता है उसको ध्यान ना दे। ठीक है, तो हंगरी जो कोई भूखा होगा तो उसको फूड दिख जाएगा, कोई एमबीकस इमेज में ही फूड दिख जाएगा। आप देखते हो ना, अलग अलग इमेज दिखाकर आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। तो उसमें यही आपका जो मोटिवेशन होगा, जो चीज आपको चाहिए वो आपको देखोगे, आप उसी चीज को देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। बहुत एक्सपेरिमेंट हुए इसके ऊपर। वी सी वॉट वी एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम उसी को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके भी काफी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कोई आने वाला है, तो आपको वो चीज दिखेगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे को कॉल आने वाला है किसी का बहुत इंपॉर्टेंट, तो आवाजें आएंगी आपको।
कि भाई कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। ओके, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई महंगी चीजें ही अच्छी होती हैं, तो आप हमेशा इस तरीके से अपनी रियलिटी को बताओगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है पोस्टमैन का, आप पढ़ सकते हैं इसमें, हम करेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर भी, लेकिन अभी इसको बेसिक समझ लेते हैं। कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है, कि आपके सोचने का तरीका क्या है, ठीक है। आप हॉलिस्टिक तरीके से सीखते हो, चीजों को हॉलिस्टिक तरीके से देखते हो, या चीजों को ब्रेक डाउन करके देखते हो, ठीक है। फील्ड डिपेंडेंट हो या फील्ड इंडिपेंडेंट हो, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई बच्चा कैसे समझेगा, किसी किसी बच्चों को पहले सब कुछ बताना पड़ता है, हॉलिस्टिक ओरिएंटेशन सेशन, सब कुछ बता दिया जाएगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर वो समझेगा। किसी बच्चों को आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 शुरू कर दो, हॉलिस्टिक बातें बता देना। तो आपकी कॉग्निटिव स्टाइल कैसी है, उसकी बेसिस पर आप परसीव करोगे। कल्चर क्या है आपका, एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, ठीक है। कल्चर, इंडिया का कल्चर अलग है, यूएस का कल्चर अलग है। तो अगर इंडिया, एक इंडियन को और यूएस वालों को कोई चीज समझाओगे, तो ये समझेंगे अलग तरीके से, ये समझेंगे अलग तरीके से, कल्चर अलग अलग है ना, कैसे समझ जाएंगे एक तरीके से। तो मतलब देखो, बात तो वही है, लेकिन समझने का तरीका इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। ओके, जैसे एस्किमोस का एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे। एस्किमोस क्या होते हैं, एस्किमोस जो होते हैं वो स्नो वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पे स्नो ज्यादा होती है। तो एस्किमोस आर वेरी स्नो सेंसिटिव। स्नो कब कब आती है, स्नो को लेकर इनके पास बहुत सारे शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है इनके पास स्नो को लेकर। लेकिन जो इंग्लिश पीपल है, वो तो स्नो को स्नो बोलते हैं, ठीक है। एस्किमोल जो होंगे, वो स्नो जब आती है तो उसके लिए अलग शब्द है, ठीक है। स्नो जब मेल्ट होगी तो उसके लिए अलग शब्द है, सबके लिए अलग अलग शब्द है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द वर्ल्ड ऑफ स्नो, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग परसेप्शन। ऐसे आप देखो, इंडिया में आप देख लो, अलग अलग कल्चर। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भाई बहुत कल्चर डाइवर्सिटी है, ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में। तो अलग अलग तरीके से चीजों को समझते हैं लोग। ओके, जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल रामायण, तो रामायण को समझने का तरीका भी आप देखो, आपको सब जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। रामायण भी एक तरीके की तो है नहीं, अलग अलग कहानियां हैं लोगों की। ओके, तो ये आपको देखोगे अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, परसीव करेंगे लोग अलग अलग तरीके से, है ना। दिस इज हाउ कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस आर शेपिंग अ परसेप्शन। तो इस तरीके से देखिए, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमने देखने की कोशिश की। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पार्ट 2 में हम इसको फिनिश करेंगे और एडवांस में लेके जाएंगे आपको। इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, फाउंडेशन बैच, यहाँ पर हम जो है बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए एनसीईआरटी का। हम अपने इन कोर्सेज के अंदर डेफिनेटली इनके साथ साथ में बहुत एडवांस लेवल पर तैयारी आपकी कराएंगे, अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। ओके, द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मे, ठीक है। सारे टेस्ट सब कुछ रहेगा इसके अंदर। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच in online and offline mode. For further inquiries, you can connect us on this number. Thank you very much.